अनदर नंबर राहुल भैया है ना, अक्षय थोड़ा म्यूट करो, हाँ साउंड आ रहा है. Okay, so now others, you are ready to hear? Suraj, Shakshi, Nishant, and Christina. Yes, sir. If you are Yes, ready, sir. then only we'll start. Yes, sir. Yes, sir. Start. Okay. Yes, sir. So today what we'll do, we'll hear about the holy name. We have discussed the process of meditation in the previous classes. Anybody have missed out process of meditation? You have no idea about yoga, you have no idea about meditation, which we have discussed. Anybody? Then I'll little bit summarize. Sir, can you summarize, please? I have missed the session. Okay, so I'll speak little bit because some of the boys have already attended. We have our lecture on YouTube, Garia Voice, so you can hear from there also. So I'll little bit summarize. Aditya, you have attended Yoga for the Modern Age? Aditya, can you respond? Suraj, have you attended Yoga for the Modern Age? No, sir. No, sir. Okay, so Nishant have attended. Yes, sir. And Suman have attended. I think Aditya also attended. Aditya, are you with us? Or your phone is with us? You are not with us, but your phone is with us. So what we'll do? So no response from Aditya. So Priyanka can check Aditya's presence. BMing. Okay, so we'll recite prayers. So I'll speak for half an hour, and then 15-20 minutes, or I will speak for 25 minutes, and we have meditation, mantra meditation together. So not just philosophy, we practice. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaiham Dadati Swapadantikam. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschatya Deshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So you can pin the slides. So yoga means the real meaning of yoga is connecting or linking the soul with the Supreme Lord. In our fourth session, we have discussed and we have scientifically proved that how we are not this body, we are soul. So soul have two bodies, subtle body and gross body. So gross body, like our Panchabhutik Sarir, our Karmendriya and Ganendriya.
which is made of earth, water, fire, air, and ether. And we have our settled body. Settled body made of mind, intelligent, and false ego. So these are the covering on the soul. So soul is originally pure, part and parcel of the Supreme Lord. But when soul disobey the Supreme Lord and try to enjoy separately from God, Bhagavad Gita explain that Ichha Desha Samuthena Danda Mohena Bharata. So when living entity have Ichha, desire to enjoy separately from God, and Desh, envy towards the Supreme Lord. So he leaves the spiritual world and comes into this material world. Now you have attended your 5th session, Substance and Shadow, where we have discussed how there is a spiritual world, and material world is just a reflection of the spiritual world. Material world is a reflection of the spiritual world, just like there is a reflection of the tree in the water. So real tree is on the bank of the river. So similarly, the real world, the spiritual world, or the original world, the eternal world, is in the spiritual world. The material world is a reflection where we are searching for happiness, but happiness is not there. There is some glimpse or some you can see the happiness, but you cannot experience the happiness. So the real happiness or the permanent happiness or the real life or permanent life is in the spiritual world. As spiritual world is the original world, similarly soul has spiritual body. And this material body is a reflection of the spiritual body. Material world is a reflection of spiritual world, and similarly our material body is the reflection of our original spiritual body, which we have lost. So now soul is in the seed form. Soul is in the seed form. In Bhagavad Gita and in other Upanishad, there is mention of the size of the soul. Keshagra satabhagasya satadha kalpita sacha bhago jiva sabidyeya ana anantaya cha kalpate. So this verse is from Katha Upanishad, which explain that Keshagra satabhagasya, अगर बाल के अग्र भाग को केशाग्र सत भाग से उसको 100 भाग कर देते हैं, तो जितना उसका साइज होता है स्वतः कल्पित सच, और उसको अगर आप फिर से 100 भाग करते हैं तो जितना साइज होता है, that is the size of the soul. So that is how the soul is very, very minute and very, very subtle. So it cannot be experienced by mundane eyes or any sophisticated machine, because soul is spiritual and it is subtle. Now soul is the seed form because it's lost. We have lost our original position. So the soul is suffering in this material world. Although soul is part and parcel of God, although soul is permanent, soul never dies. We have all heard it in the classes. But currently in the conditioned stage, soul is suffering in the material world. So as we have discussed, the Ichha Desha Samuthena. The reason is Ichha and Desh. And then another place Bhagavad Gita explain, Lord Krishna explain that Mamoi Bangsho Jibo Loke Jibo Bhuta Sanatana. Mamoi Bangsho, मेरा अंश है. कौन? न जीवा. The living entity is my part and parcel. And how means which type of part and parcel? Sanatana. सनातन अंश है. आत्मा भगवान कहते हैं मेरा सनातन अंश है. मामोई वंश जीवो लोके जीव भूता सनातना. तो जीव भगवान के सनातन अंश हैं. लेकिन फिर भगवान बोलते हैं अगले लाइन में, मनोषष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति. मनोषष्टानि इंद्रियानि, लेकिन मन और बाकी 6 इंद्रियों के साथ, मन के साथ जो बाकी 5 इंद्रिया है, टोटल 6 इंद्रिया,
तो मनोषष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, लेकिन इस प्रकृति, इस भौतिक जगत में कर्षति, कर्षति मीन्स स्ट्रगलिंग, सफरिंग. So soul is suffering, like we are suffering due to coronavirus. And similarly, every moment we are suffering, different way. So we are suffering by old age, we are suffering by disease, we are suffering by death, and even birth is also suffering, because before the birth, the baby has to stay inside the womb, head down and legs up. किसी को पता नहीं कि जन्म के पहले हमारा सर नीचे की तरफ रहता है और पैर ऊपर की तरफ रहता है. And there is a digestive fire which is always burning our body, and that's what the soul, when the baby comes out from the womb, the baby cry. Have you seen the baby smiling? जन्म हुआ मेरा आज. क्या बोलते हैं, उत्सव मनाओ. सब लोग उत्सव मनाते हैं, लेकिन बच्चा रोता है. क्यों बच्चा रोता है? बच्चा क्यों रोता है? क्योंकि उनको गर्भ में बहुत कष्ट मिलता है, और जब उनका 7 महीना उम्र होता है, श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन that the baby prays to the Supreme Lord that please bring me out from the womb of this painful place. And then Lord gave him darshan. भगवान उनको दर्शन प्रदान करते हैं, और भगवान से वो प्रॉमिस करते हैं कि जब मैं ये गर्भ से निकलूंगा तब मैं आपकी शरण लूंगा. But unfortunately, when the baby comes out, he forgets everything due to the influence of the material nature. प्रकृति स्थानी कर्षति. इस भौतिक जगत के प्रभाव से, ये जो भगवान के बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति के प्रभाव से आत्मा सब कुछ भूल जाते हैं और सोचते कि यही मतलब भगवान को छोड़ के या इस भौतिक जगत में बहुत मैं एंजॉय कर सकता हूँ. और इस प्रकार आत्मा इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के कष्ट पाते हैं, और जब अलग अलग प्रकार के कष्ट पाते हैं, पाके समझते हैं कि आई एम नॉट इन द राइट प्लेस, मेरे को बुढ़ापा नहीं चाहिए, मेरे को मृत्यु नहीं चाहिए, मेरे को दुख नहीं चाहिए, शायद इससे परे कुछ, मैं शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं शाश्वत जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं दिव्य आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ. भगवान कौन है? तो जब एक प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करते, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब उनके स्पिरिचुअल लाइफ का शुरुआत होता है. तो योगा शब्द का अर्थ है, तो जब आत्मा भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ता है, और जब आत्मा भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ते हैं, तब क्या होता है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से, ये जो शरीर परिवर्तन के चक्र से, ये भौतिक जगत के अलग अलग प्रकार के जो दुख है, उससे मुक्त होकर भगवान के शाश्वत धाम वापस चले जाते हैं. तो योगा शब्द का अर्थ कोई एक्सरसाइज नहीं है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे आज के दुनिया में अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करवाया जाता है योगा के नाम पे. लेकिन एक्चुअली योगा इज नॉट फॉर बॉडी, दैट इज एक्सरसाइज, दैट इज कॉल्ड व्यायाम, दैट इज फॉर बॉडी, बट योगा इज फॉर द सोल. जोग मतलब प्लास, आत्मा को भगवान के साथ प्लास करते हैं. So this is the definition of yoga. So now there is a 4 different process of yoga. So different age there is a different processes. So the Kali Yuga is very degraded age. Kali Yuga is very fallen age. People are very, very fallen. And Kali Yuga, the religious standard also fell down. People lifespan is very short, mind is very disturbed, so much pollution, and everything is impure. So therefore in Kali Yuga, all the processes of yoga or meditation is not possible. And therefore Shastra recommends specific yoga for this particular age. Kali Yuga के लिए specific योगा प्रोसेस, भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ने की जो विधि, वो शास्त्र में बताया गया है.
So till this much is clear to everyone. जब जितना मैं बोला till this much everything is clear to all of you. Suraj, Sakshi. Yes, sir. Okay, and Nishant, you have already heard it. Is it? Yes, sir. Okay, Christina, Aditya. Yes, sir. Aditya Yes, can sir. respond. Yes, Yeah. yes, sir. Okay, thank you. So now, So I heard you have called me previous time, but I'm unable to open my mic, so I think I would like in chat, but I didn't. okay, so please respond her sometime. I hope Suman is also attending by other phone. So, so I hope this much everybody understand what is yoga and what is the purpose of yoga. So, so outside world there is so many things are going on in the name of yoga, but which is actually not a yoga system. So whatever we learn, Shastra is the Praman. That's what in the third session we have discussed. Third session, so our whole course name is Mantra of Life. And whatever we are teaching, one chapter, one session, one mantra. So third session we have learned that scripture is infallible. Shastra is infallible because it is coming down directly from God. शास्त्रस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम. शास्त्र भगवान के दिया हुआ है. तो आचार्य मांग पुरुषो वेदा. And then there is the authority of scripture, acharyas, the spiritual master, the parampara. Acharya mam purusho veda. So the great acharyas, which is coming down in the disciplic succession, they are the authority of Veda. So Veda is infallible, and there is a different departments of Veda, like Rig, Sham, Jaju, Atharva, and then Upanishad, then Puranas, and then Mahabharata, then Bhagavad Gita. So which speaks different departmental knowledge, not just spiritual knowledge. All the department knowledge Veda speaks. So therefore, anything you want to learn, the authority is Veda, the Praman is Veda. So Bhagavad Gita speaks that Tasmat Shastra Pramanam te Karyam Akaryam Vyavasthito. तो आपके कार्य और अकार्य, आपका कर्तव्य क्या है और क्या कर्तव्य नहीं है, उसका प्रमाण तस्मात् शास्त्र प्रमाणांते, शास्त्र प्रमाण है. जिस प्रकार भारत के नागरिक के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रमाण क्या है, कुछ तो प्रमाण होना चाहिए ना. Constitution. Similarly, there is a universal constitution. Universal constitution. Now for India, something which is law may not be law for America. So different country, different constitution. But there is a universal constitution which God made for all living being. सब जीवात्मा के लिए भगवान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है. So that is scripture. Now scripture recommend the yoga process, the different yoga process for different age, because all the yoga process is not possible. Like sometime you have medicine, and then medicine have expiry date. So if you take those medicine after the expiry date, the medicine will not work. Yes, medicine will not work. Similarly, the Shastra says that yoga processes which is recommended for Satya Yuga, if you practice in Kali Yuga, it will not work. The yoga processes which is recommended for Satya Yuga, if you practice in Kali Yuga, will not work. So therefore, we should not be over intelligent than scripture. बहुत बार लोग ओवर इंटेलिजेंट दिखाते हैं, मतलब वो भगवान से भी ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं. नहीं, मैं ये प्रोसेस फॉलो करूंगा. तो आप फॉलो कर सकते मूर्ख के जैसे, और फल उसी प्रकार की प्राप्त होगा. तो बुद्धिमान व्यक्ति डॉक्टर के दिया हुआ प्रेस्क्रिप्शन और आचार्य के दिया प्रेस्क्रिप्शन, शास्त्र के दिया हुआ प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करते हैं और उनको सफलता प्राप्त होती है. तो शास्त्र एक्सप्लेन, एक्चुअली ये जो भी मैं बोल रहा हूँ पीछे स्लाइड में है, ठीक है, जो पीछे स्लाइड जितने भी क्रॉस कर गए हैं उसके स्लाइड में है. तो राहुल थोड़ा सा पीछे जा सकते हैं आप, थोड़ा जस्ट मैं आई विल वाइंड अप इन 5 मिनट्स एंड देन विल गो फॉरवर्ड. थोड़ा वो शास्त्र में चले जाइए, ठीक है.
तो Shastra explained there is a 4 yoga processes in 4 age. तो रीते जद ध्यायते विष्णु त्रेताया जजतो मखोई दापरे परिचर्जया कलौ तद हरि कीर्तनात्. So Rite means in Satya Yuga. Rite jad dhyayate Vishnu. The Satya Yuga, the process was dhyayate Vishnu. भगवान विष्णु की ध्यान करना. तो आज के दुनिया में लोग ध्यान करते हैं, वो भी विष्णु भगवान की ध्यान नहीं करते, वो किसी शून्य का ध्यान करते हैं या किसी ज्योति का ध्यान करते हैं. शास्त्र में ध्यान करने के बारे में बताया गया है, लेकिन वो शून्य का नहीं, या क्या बोलते हैं, किसी ज्योति का नहीं. तो भगवान की ध्यान करने के बोला गया है. जो भगवान नारायण की ध्यान करने के बारे में बोला गया है, विष्णु के ध्यान करने के बारे में बोला है, क्योंकि वो परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान है. रीते जो ध्यायते विष्णु त्रेताया जजतो मखोई. इन द त्रेता युगा द प्रोसेस वाज जजतो मखोई यज्ञ. त्रेताया जजतो मखोई दापरे परिचर्जया. इन दापर युग द प्रोसेस वाज वर्शिपिंग द डेटीज. भगवान की श्री विग्रह की पूजा करना. And Kalau Tad Hari Kirtanat. In Kali Yuga, the process is Hari Kirtanat, the chanting the holy name of the Lord. And if you go any religion, okay, ठीक है, if you go to any religion, all the religion they speaks about the chanting. If you go to Quran, if you go to Bible, if you go to Buddhism, if you go to other religion, every religion speaks about the chanting of the holy name, because this chanting of the holy name is the yuga dharma, is the process of this Kali Yuga to reconnect ourselves with the supreme personality of Godhead. So Satya Yuga process is meditation. Treta Yuga the process is yajna. Dapar Yuga, the process was worshipping the deities or temple worship, and Kalau Tad Hari Kirtanat. In Kali Yuga, the process is Hari Kirtanat, chanting the holy name of Krishna. So now, in Kali Yuga, this meditation, especially the Hatha Yoga, like which have 8-fold process, Yam, Niyam, Asan, Pratyahar, Pranayam, Pratyahar, Dhyan, Dharana, Samadhi, which recommends, so which is not possible in Kali Yuga because of many things. So if I going to speak, so whole class will go on this only. So similarly, Yajna is also not possible because you will not get the qualified Brahmana. Kalau Shudra Sambhava in Kali Yuga, it is mentioned in the Shastra that all the people are in the standard of Shudra. So Kalo Shudra Sambhava. So therefore there is no qualified Brahmana, and then there is no pure ghee and honey and other ingredients of yajna. So unless these things are there, you cannot perform yajna, or even you perform yajna, the desired result will not come. So in this way, the other processes are not possible, and even you perform, it will not give the desired result, or the advancement will be very, very slow. And because Kali Yuga, people are staying in the cities, and the lifespan is very short, and mind is very, very disturbed. People are suffering in so many other circumstances. So therefore, other processes are practically not possible, and it requires long lifespan. जो सत्य युग में था, लोग बहुत ज्यादा समय जीते थे. कली युग का जो एवरेज एज है वो 60 से 100 साल है. तो इतनी छोटी लाइफ स्पैन में, और जिधर लोग अलग अलग प्रकार के परेशान हैं, लाइफ इज वेरी फास्ट, इट्स अ जेट एज. So practically it is not possible. So therefore Shastra already explained, पहले से बताया गया है. तो कलो तद हरि कीर्तन. In Kali Yuga the process is chanting the holy name. आगे चलिए थोड़ा स्लाइड में आगे चलिए. So आगे चलिए. So there is many So Shastra recommend mantra meditation. So Maha Mantra, the holy name of God.
So man means mind and tra means which delivers the mind. जो मन को परित्राण करते उसको कहते हैं मंत्रा. तो ये महामंत्र प्रदान किए हैं जिस प्रकार हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं, हमारे चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ सकते हैं. Currently we are in contaminated stage. Currently we are in just as we have discussed that soul left the spiritual world and came in this material world to enjoy separately from God, and therefore soul became contaminated. So soul is struggling in this material world, but by chanting this Maha Mantra or the holy name of God, we can be purified. आगे चलिए. So these things we have already discussed. So today we'll discuss the power of this mantra, power of this holy name. So before we go to power of holy name, I'll just speak one or two verses from other scripture about the recommendation of the holy name for the new boys and girls. So there is many verses in scripture which speaks about holy name, that this Maha Mantra, Hari Kirtana, or name of Krishna should be chanted. So there is one verse in Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is the essence of all Veda. Nigama kalpatarur golitam phalam. So Bhagavatam is compared with the ripened fruits of entire Veda. So Veda is compared as kalpataru. Kalpataru means kalpa vriksha. जो भी आपको इच्छा है आप वो वेदा प्रदान कर सकते हैं. अभी उस वेद में सब चीज बताया गया, आप किस प्रकार क्या प्राप्त कर सकते हैं. तो इसलिए वेद को कल्प वृक्ष कहा गया है. अभी उस कल्प वृक्ष का जो फल है, वृक्ष का सार क्या है, उसकी फल है. तो कल्प वृक्ष का फल है भागवत, श्रीमद् भागवतम. तो निगम कल्पतरुर गोलितम फलम. केवल फल नहीं है, पिघला हुआ फल है. मतलब रस, जैसे आम का वृक्ष का सार है आम, और उस आम को अगर आपको जूस बना के दिया जाता है, आम का रस बना के दिया जाता है, तो कैसा लगेगा बोलिए. तो निगम कल्पतरुर गोलितम फलम सुखम कोदामृत द्रव संयुतम. ये आया है सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव जी के पुत्र हैं, जो महाभागवत है, उनके श्रीमुख से आया है, मुखारविंद से आए हैं. तो निगम कल्पतरुर गोलितम फलम सुखम कोदामृत द्रव संयुतम. द्रव संयुतम इज अ लिक्विड फॉर्म. द्रव संयुतम पीबत भागवत रसमालयम. और इसको पीना चाहिए, इसको पीना चाहिए. तो ये जो भागवत है इतने स्वादिष्ट हैं, इतने मधुर हैं, इतने श्रेष्ठ हैं, इतना सार हैं, इसको पीना चाहिए. क्यों? क्योंकि रसमालय में रस मलाई के जैसा है, इतनी स्वादिष्ट है. तो वेद को समझना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि वेद में ज्यादा फिलोसफी है, वेद में ज्यादा थियोरी है. लेकिन जो भागवतम है ये वेद के केस स्टडी है. वेद को प्रैक्टिस करके किस प्रकार लोगों को सफलता प्राप्त हुआ है अलग अलग युगों में, और भगवान किस प्रकार प्राप्त हुए, भगवान के साथ भक्तों की, भगवान के जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर किस प्रकार भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त किए हैं, भगवान उनको कृपा किए हैं, भगवान उनके साथ आदान प्रदान किए हैं, वो भागवत में वर्णन किया गया है. तो इसलिए पीना चाहिए. पीबत भागवत रसमालयम मुहुरुहु रसिका भुवि भावुका. और जब कोई व्यक्ति इस भागवतम का आस्वादन करते, श्रवण करते हैं, तो क्या होता है, भावुका, रसिका, रस प्राप्त करते, रसिक हो जाते हैं. और भावुका, वो दिव्य आनंद में मग्न हो जाते हैं. तो भौतिक जगत में सब लोग दुख पा रहे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो रसिका भावुका. गीता में भी भगवान बहुत सारे जगह में बताए हैं. तो उस भागवतम में कहा गया है, उसी भागवतम में कहा गया है कि कलेर्दोषे निधे राजन अस्ति ही एक महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत. तो जब सुखदेव गोस्वामी को
शाप प्राप्त हुए थे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी सारे पृथ्वी के राजा थे। सुखदेव गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के वंश परंपरा में, युधिष्ठिर महाराज के पुत्र है और उनके पुत्र है महाराज परीक्षित। तो परीक्षित महाराज को शाप मिला था कि 7 दिन में उनका मृत्यु हो जाएगा। सो ही वाज सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन दैट आई एम गोइंग टू डाई एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ आई कैन गो, हाउ आई कैन अचीव इटर्नल लाइफ, मैं कैसे शाश्वत धाम प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी ने तब महाराज परीक्षित को बताया, कोलेर दोष निधे राजन, हे राजन, ओ किंग, कली युग इज ओशन ऑफ फॉल्ट। कली युग में हर प्रकार की दोष है, हर जगह में जाएंगे करप्शन है, हर जगह में जाएंगे इम्प्योरिटीज हैं, इन एनी फील्ड यू गो। तो कोलेर दोषे निधे राजन, if you go to political field, if you go to business field, if you go to marketing field, if you find out the food product, everywhere there is a corruption. If you go to the students, they are also corrupted. So in every department, if you go to judgment, कोर्ट में जाते हैं तो उधर भी लोगों को सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो if you go to the police, they are also corrupted. So the political leaders, the minister, even people, every individual is contaminated. Lot of impurities and bad thoughts. So even knowing the truth, people are not following. So in this way, Kali Yuga is, there is an ocean of fault. Koler doshe nidhe rajan. But there is one good quality in Kali Yuga. Ostihi eka mahan guna. There is one good quality in Kali Yuga. What is that? Kirtana deva krishnasya mukta sangha param brajet. Kirtana deva krishnasya, the chanting the holy name of Krishna. And what will happen by that? So mukta sangha param brajet. And one will become mukta, free from all contamination, all impurities, all the reaction of his past life karma and the cycle of birth and death. तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा, देन पाप कर्म के फल से मुक्त हो जाएंगे, उनके जितने भी इम्प्योरिटीज हैं जिनके कारण हम लोग दुख भोग रहे हैं उनसे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। तो कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तो संगो परम ब्रजेत। और आप इससे सारे मुक्त होके परम ब्रजेत कहाँ जाएंगे? ब्रजेत मतलब जाना, कहाँ जाएंगे? परम धाम, भगवान के धाम प्राप्त करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी के पास 7 दिन था, सुखदेव गोस्वामी के पास 7 दिन था। 7 दिन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए ऐसा फॉर्मूला चाहिए था सुखदेव गोस्वामी को, महाराज परीक्षित को। तो महाराज परीक्षित के पास 7 दिन समय था। तो इसलिए कली युग में भी आयु बहुत ही कम है। हमारे एवरेज लाइफ स्पैन इज 60 to 100, बट इट नॉट गारंटेड, इसे कोई गारंटी नहीं कि हम लोग इतने दिन जिएंगे। और कली युग में हमेशा लोग विचलित हैं। तो ऐसे पावरफुल प्रोसेस है कि कली युग के गिरे हुए लोगों को भी सक्सेस दे सकता है। और इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सारे जगह में तस्मात् संकीर्तनम जस्य जगत मंगलारहसम, तो तस्मात् संकीर्तनम जस्य, दिस चैंटिंग ऑफ द होली नेम, संकीर्तन मीन्स congregational chanting or group chanting. So that's what we kept this group chanting, where we come together and chant together. So in Kali, like in other age, दूसरे युगों में लोग हिमालय जाके ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन कली युग में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कली युग में मन बहुत विचलित है और कली युग में लोग तपस्या नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कली युग में कहा गया है संग शक्ति कली युगे। कली युग में स्ट्रेंथ है एसोसिएशन में, संग शक्ति कली युगे। सो देयरफॉर दिस संकीर्तन मीन्स congregational chanting. We come together and chant together. So that inspire each other, that create a spiritual vibration which purifies the whole atmosphere, which create auspiciousness. Jagat mangala और हसाम, पूरे जगत में मंगल तैयार करते हैं। तो we see how Srila Prabhupada, the founder of ISKCON, he went alone to America and he created this movement under the instruction of Lord Gauranga, Lord Chaitanya, who is incarnation of Krishna. And we see that how the whole world
now chanting. The whole world is chanting the holy name. American, African, Australian, European, any part of the world you go, you will see the chanting of Hare Krishna Mahamantra is going on. The temples, Radha Krishna temple or Lord Chaitanya temple, Lord Jagannath Rath Yatra is going on. So thus people are giving up their all bad habits. That people are giving up gambling, intoxication, illicit sex, and different kind of bad habits. People are giving up, and they're taking up this pure path of life. They're becoming sober. They're becoming honest. They're becoming gentle. They're becoming respectful. They're becoming tolerant. They're becoming humble. So how this good qualities, auspiciousness is coming? Because of by the power of holy name. This power of holy name is creating all auspiciousness inside and outside. People are becoming clean externally. In society, people are clean internally. So this is the power of this process. So even in the Western countries where people are very, very fallen, more fallen than Indians, they are becoming uplifted. They are becoming advanced by this process of chanting the holy name. So koler doshe nidhe rajan asti eka mahan guna Kirtana Deva Krishna. So although this Kali Yuga is ocean of fault, but when this group chanting or the congregational chanting is going on, people chant the holy name. So this holy name, Hare Krishna Maha Mantra, this Maha Mantra meditation, it is Maha Mantra meditation. It purifies the whole universe. Jagat Mangala or Hasam. So therefore, Mahotamapi Kaurabhyam, Sukdev Goswami is saying that therefore, great personality of Kuru dynasty, you should chant the holy name. So therefore, Kali Yuga is very short lifespan and you have only 7 days. But in 7 days also you can make your life successful. That is the power of this process. Similarly, there is many other scripture which explain about the chanting of the holy name. So there is Brihad Naradiya Puran, which explain Harer Nama Namaiva Kevalam Kalo Nastevya Gatiranyatha. So Harer Nama Namaiva Kevalam Kalo, in this age of Kali. So there is a prescription. According different age, different process. So Satya Yuga, meditation. Treta Yuga, some other process. Kalo, for Kali Yuga, Harer Nama Namaiva Kevalam. 3 times it has been spoken. And Kalo Nasteva Gatiranyatha. दूसरा कोई गति नहीं है. Hare Namaiva Kevalam. Only the chanting of the holy name. So therefore, there is many other verses I am not going to discuss. You can hear that lecture, Yoga for the Modern Age, which I have given last time. So now we'll discuss because we have already passed lot of time. So we have discussed one slide only today on this power of holy name. So is it clear till अभी तक जो डिस्कस किया है महामंत्र के जो ऑथेंटिसिटी है, चैंटिंग द होली नेम, कलियुग की योग पद्धति है, इसका ऑथेंटिसिटी के बारे में जो हमने चर्चा किया है, शास्त्र के बहुत सारे श्लोक कोट किया है, तो इसके ऊपर किसी का कोई डाउट है या आपको समझ में आया? साक्षी, निशांत, क्रिस्टिना, सूरज? Yes, sir. सर मेरे को फिर से एक बार ये रिपीट कर देना, मेरी बहन रो रही है। आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बोला आपको आपने सुन चुके हैं ऑलरेडी। मेरे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा कभी, ठीक है? सूरज, इट इज क्लियर टू यू अंडरस्टूड और एनी डाउट? यस सर, क्लियर। आप सुन रहे हैं ना? सर मेरा एक डाउट है सर। ठीक है, डाउट थोड़ा लास्ट में पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक, आगे वाला टॉपिक डिस्कस करोगे तो बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा।
तो तो क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी रिपीट कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए फास्ट बोल रहा हूँ। तो आपको समझने में दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, या नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पावर ऑफ होली नेम। हाँ, ये भगवान के नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र, इसके पावर क्या है। तो इसके ऊपर पद्म पुराण में एक बहुत ही फेमस श्लोक है, बहुत ही फेमस श्लोक, बहुत ही फेथ गिविंग श्लोक है। तो आप लोग मेरे पीछे पीछे जरूर दोहराइएगा। सो ये श्लोक पीछे दिया हुआ है, देखिए स्लाइड में दिया हुआ है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। प्लीज रिपीट। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वं नाम नामिनः। So this is the verse given speaking about the power of holy name. भगवान के नाम की महिमा को वर्णन करते हुए ये पद्म पुराण में ये श्लोक है, नाम चिंतामणि कृष्ण। तो कृष्ण के जो नाम है, देखिए नाम चिंतामणि है, तो आपको सारे इच्छा पूरी कर सकते हैं। आपकी जो भी चिंता है, जो भी आपकी इच्छा है पूरी कर सकते। जैसे चिंतामणि कल्प वृक्ष है, उसी प्रकार ये जो भगवान की नाम चिंतामणि है। जैसे परसमणि है, परसमणि जिसको स्पर्श करेंगे सोना हो जाता है। तो उसी प्रकार एक परसमणि से भी श्रेष्ठ है चिंतामणि। बहुत सुंदर स्टोरी है, दूसरे किसी भी समय आप लोग सुनेंगे किस प्रकार जो भगवान के नाम है परसमणि से भी श्रेष्ठ है। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये जो भगवान के जो नाम है, चैतन्य मतलब चेतना है। भगवान के नाम कोई लाइफलेस साउंड नहीं है। भगवान के नाम, इसमें इस नाम में चेतना है, जीवन है। चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, और रस विग्रह ये एक विग्रह स्वरूप है। जैसे हमारे शरीर है, शरीर जो एक विग्रह है, इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के दुख है। तो हमारे जो शरीर है, हमारे जो शरीर है, तो ये दुख की विग्रह है, अज्ञान के विग्रह है। लेकिन भगवान के जो नाम है ये रस विग्रह है। जैसे हमने कहा आम रस के बारे में, तो आम रस कितना अच्छा लगता है, स्वादिष्ट है। उसी प्रकार भगवान के जो नाम है ये रस विग्रह। जब आप भगवान के नाम को बहुत सिंसियरली चैंटिंग करेंगे तो आपको रस का आस्वादन होगा। तो इसलिए रस विग्रह कहा गया है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। और भगवान के जो नाम है पूर्ण शुद्ध, इसका दो अर्थ है। पूर्ण पहला अर्थ है कंप्लीट, भगवान कंप्लीट है और इसलिए भगवान के नाम भी कंप्लीट है। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो भगवान पूर्ण है और इसलिए भगवान पूर्ण होने के लिए भगवान में कोई भी क्या बोलते हैं कमी नहीं है, और इसलिए भगवान के नाम भी पूर्ण है। हम लोग चर्चा करेंगे आगे। इस दुनिया में कोई व्यक्ति का नाम और उसके उस व्यक्ति में कमी है, कोई व्यक्ति के नाम और उस व्यक्ति में फर्क है। लेकिन भगवान के नाम, क्योंकि भगवान पूर्ण है इसलिए भगवान के नाम भी पूर्ण है। तो पूर्ण एक अर्थ है। दूसरा अर्थ पूर्ण शुद्ध। भगवान के नाम संपूर्ण रूप से प्योर है। भगवान के नाम कंप्लीटली प्योर, एंड देयरफॉर दिस होली नेम कैन प्यूरिफाई एनीवन। This holy name can purify anyone, no matter how much degraded he may be. No matter how much degraded he may be. Purna Shuddho, Nitya Mukto. And this holy name is completely liberated. This holy name is completely liberated. And therefore it can liberate anyone. This holy name can liberate anyone. So because this holy name is completely liberated, Purna Nitya Mukta, another meaning of Nitya is it is completely independent.
Mukta means independent. And because it is completely independent, therefore, the effect of chanting does not require any previous qualification. Please hear attentively. The success of chanting does not depend on any previous qualification. पहले कोई योग्यता की जरूरत नहीं है चैंटिंग के द्वारा सफल होने के लिए. आप कोई भी योगा प्रैक्टिस करिए, आप ध्यान करिए या यज्ञ करिए, आपको बहुत या भगवान की पूजा करिए, बहुत प्रीवियस क्वालिफिकेशन का जरूरत है. आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको बचपन से अच्छे संस्कार प्राप्त होना चाहिए, आपको बहुत पंडित होना चाहिए, शास्त्र के सारे ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, आपको उच्च कुल में जन्म होना चाहिए, सात्विक जीवन जीना चाहिए. ऐसे बहुत सारे क्वालिफिकेशन का जरूरत है. हाँ, तभी आप बाकी योगा प्रोसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. बहुत तपस्या करना चाहिए. हाँ, लेकिन इफ दिस प्रोसेस कैन गिव सक्सेस टू एनीवन, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो. Therefore, this is very, very hope giving for the people of this age of Kali, and that's what Lord has given most powerful process. सबसे शक्तिशाली लेकिन सबसे आसान तरीका कलियुग के लिए दिया है, क्योंकि कलियुग के लोग बहुत गिरे हुए हैं. कठिन प्रोसेस देंगे तो फॉलो नहीं कर पाएंगे. ऑलरेडी कलियुग के लोगों का लक्षण है मंदो. दे आर वेरी लेजी and they're not interested about spiritual life, and therefore the Supreme Lord, he has given this process. He has brought this holy name Golokero Premodhan Harinam Sankirtan. He has brought the holy name from the spiritual world, आध्यात्मिक जगत से लाए हैं. तो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, तो भगवान के जो नाम है completely independent, and therefore the success does not require any previous qualification. बहुत पतित व्यक्ति भी गिरी हुई स्थिति से एकदम आध्यात्मिक जीवन के परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो दूसरे योग पद्धति में बहुत करोड़ साल तपस्या करके कोई प्राप्त करता है. बहुत उदाहरण है. अजामिल का स्टोरी हमने पहले भी बताए हैं. अजामिल ब्राह्मण परिवार में थे और लेकिन बहुत धार्मिक थे, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने किसी वेश्या के संग में आ गए, और वेश्या के संग में आके अपने सती स्त्री को छोड़ के वेश्या के साथ विवाह कर लिए और उसके साथ वन में रहने लगे और बहुत पापमय जीवन जिए. 10 पुत्र संतान उत्पादन किए. उनके पैसा खत्म हो गए और चोरी करना चालू किए, लोगों को मारना चालू किए. ऐसे बहुत पापमय जीवन बहुत साल से जिया. लेकिन भाग्य से अगस्त मुनि की कृपा से उन्होंने अपने पुत्र का नाम दिया था नारायण, और पुत्र के प्रति अटैच था बहुत. मृत्यु के समय जब जमदूत लोग आए उसको लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत पाप किया है, तो फिर उन्होंने बहुत भयभीत होकर नारायण उच्चारण किया, क्योंकि बहुत अपने पुत्र का नाम था नारायण. और जब नारायण उच्चारण किया तो विष्णुदूत लोग आ गए. तो विष्णुदूत लोग आ गए, बोले कि आप इसको नहीं लेके जा सकते. बोले क्यों? बोले क्योंकि इन्होंने भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया. बोले नहीं, इसको पुत्र का नाम उच्चारण किया, अपने पुत्र को पुकारा. तब विष्णुदूत लोगों ने जमदूत को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो जमदूत लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ये पद्म पुराण के श्लोक कि भगवान के नाम कॉम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, भगवान के नाम संपूर्ण रूप से स्वाधीन है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम में उतना ताकत है, भगवान के नाम में उतना शक्ति है, क्योंकि भगवान ने उस नाम में सारे शक्ति दिया है. नाम नामकारी बहुधा निजो सर्व शक्ति. वी आर डिस्कसिंग टुडेस टॉपिक पावर ऑफ होली नेम. भगवान नाम की शक्ति क्या है हम लोग चर्चा कर रहे हैं. तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निजो सर्व शक्ति. हे भगवान, आपने बहुत प्रकार के नाम आपने लिया है. यू हैव एक्सेप्टेड मेनी ऑफ योर नेम, and in that name you have given your all potency. निजो सर्व शक्ति, अपना सारा शक्ति उन्होंने अपने अर्पण कर दिया. तो अगर भगवान ने अपनी सारी शक्ति भगवान में नाम पे दे देंगे, तो भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क होगा? आप लोग बोलिए. भगवान के सारा शक्ति, अगर आप में से सारा शक्ति ले लिया जाएगा,
सपोज आपके आपके पास जितने भी स्ट्रेंथ है सब कुछ ले लिया जाएगा, तो आप में से कोई शक्ति बचा रहेगा? नो सर। नो। उसी प्रकार अभी उल्टा सोचिए, अगर भगवान के सारे शक्ति भगवान के नाम में दे दिया जाएगा तो भगवान के नाम किस प्रकार शक्तिशाली होगा? भगवान के equivalent। भगवान के जैसा। हाँ, तो भगवान के जैसे शक्तिशाली होगा। तो इसलिए भगवान के नाम भगवान के जैसा शक्तिशाली है। नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति। तो जमदूत लोग बता रहे हैं, विष्णुदूत लोग, कि भगवान के नाम में सारे शक्ति भगवान ने अर्पण किया। और फिर अजामिल विष्णुदूत लोग बता रहे हैं कि भगवान के नाम केवल सुप्रीमली इंडिपेंडेंट नहीं है, भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनो। नाम और नामी, नाम और भगवान अभिन्न है। तो क्योंकि ये जो अजामिल ने अपने पुत्र का नाम पुकारा है, लेकिन भाग्य से उनके पुत्र का नाम भगवान का नाम ही है, और इसलिए उन्होंने भगवान के नाम उच्चारण करने की पूर्ण फल प्राप्त किए हैं। क्योंकि भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है, और इसलिए जो अजामिल जो बहुत पापी है, हाँ, लेकिन उन्होंने भगवान के नाम जप करने की, भगवान के नाम की कीर्तन करने की फल प्राप्त किया है। और इसलिए भगवान के नाम सूर्य के जैसा है, जिधर ही सूर्य होता है अंधेरा चला जाता है, जिधर ही अग्नि होता है सब कुछ राख कर देता है। उसी प्रकार अजामिल ने भगवान के नाम को पुकारा है हेल्पलेसली, हाँ, और इसलिए इनका सारा पाप जल के राख हो गया है, और इनका सारा जो अज्ञान विनाश हो चुका है। हाँ, और इसलिए ये जो अजामिल जमदूतों की या जमराज के कब्जे में नहीं है, जमराज के जुरिडिक्शन में नहीं है, क्योंकि इन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया। इसलिए भगवान विष्णु स्वयं इसका क्या बोलते हैं, इसका फ्यूचर का डेस्टिनेशन देखेंगे। तो जमदूतों को तो पता नहीं था, जमदूत तो सोचे थे कि जमराज ही भगवान है, तो उन्होंने आया था एस्कॉर्ट करने के लिए, लेके जाने के लिए जमलोक, हाँ, लेकिन अभी चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण के दूत आ गए, हाँ, और इतने सुंदर दिखने में है, चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म भगवान के जैसे दिखने में है। ऐसे लोग तो कभी देखा ही नहीं जमदूत लोगों ने, पूरा भूत के जैसा उनकी चेहरा है। और ये अजामिल दोनों देख रहा था लाइव टेलीकास्ट, हाँ, लाइव टेलीकास्ट देख रहा था, जमदूता वर्सेस विष्णुदूता। ये भागवतम के कहानी है, छठा स्कंद में आता है। दिस इज द रियल स्टोरी एंड अजामिल दिस पास्ट टाइम टुक प्लेस इन प्रयाग, हाँ, जो प्रयाग इलाहाबाद है, अजामिल का घर उधर ही था। तो तब क्या हुआ, अजामिल बहुत ही प्रभावित हो गया कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ, इतना पतित हूँ, इतना अपराध किया मैं, मेरे ब्राह्मण की सारे वृत्ति को छोड़ के, संस्कृति को छोड़ के, पत्नी को छोड़ के वेश्या के साथ संग किया, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान नाम इतने महान है कि किसी तरीके से अनजाने में भी मैंने भगवान के नाम का उच्चारण किया, और भगवान इतने दयालु है, मेरे को जमलोक या जमदूत पाप कर्म के सारे फल से मुक्त कर दिए, पाप कर्म के सारे जो फल है उससे हमें मुक्त कर दिए, और जमलोक जाने से रक्षा किए। मैं ऐसे भगवान के ऋण कैसे चुकाऊंगा, मैं भगवान के प्रति मैं कैसे कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। ऐसे पश्चाताप करने लगे जामिल। तो पश्चाताप करते हुए उनके हृदय में बहुत ही परिवर्तन हुआ, अजामिल के हृदय में परिवर्तन हुआ, और संकल्प लिया कि मैं कभी भी और ऐसा पाप दोबारा नहीं करूंगा। दिस इज द पावर ऑफ होली नेम। व्हेन समबडी, नॉर्मली पीपल नो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अगर ऐसे कर्म करेंगे ऐसे फल भुगतने वाले हैं। हाँ, लोगों को नॉर्मली पता है कि ये पाप कर्म है। अब अमेरिका में लोग क्रिश्चियनिटी में लोग क्या करते हैं, वो लोग कॉन्फेस करते हैं, जाके चर्च में जाके कॉन्फेस करते हैं कि मैंने मैंने ऐसे ऐसा पाप किया, पोप के पास या उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास ऐसे पाप किया, तो मेरे को माफ कर दीजिए। और फिर दोबारा जाके पाप करते हैं, कॉन्फेस करते, पाप करते। और हिंदुइज्म में भी लोग ऐसे करते हैं। लोग पुण्य तीर्थों में जाके नहाते हैं
और भगवान के सामने जाके माफी मांगते हैं, कान पकड़ते हैं और फिर दोबारा जाके पाप करते हैं। उनको पाप के आदत को छोड़ने की शक्ति नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बिकॉज दे आर नॉट चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड। बट हियर अजामिल, he was chanting the holy name, and by chanting the holy name, by the mercy of Vishnu Dutas, by the mercy of Vishnu Duta, he developed this strength not to commit the sin again. तो तब क्या हुआ? अजामिल वो अपने जो प्रयाग नामक जो जगह था जिधर रह रहे थे, वो स्थान छोड़ के वो चले गए उत्तर के दिशा में और हिमालय के पास, और उधर जाके उन्होंने और सिंसियरली भगवान के नाम का जप किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार अजामिल बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत फीलिंग के साथ, बिकॉज ही हैव ऑलरेडी सीन द मर्सी ऑफ द पावर ऑफ होली नेम, बहुत फीलिंग के साथ, बहुत फेथ के साथ उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया। और जब फेथ के साथ, फीलिंग के साथ उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया, बहुत जल्दी अजामिल जैसे गिरे हुए लोग भगवत उपलब्धि किए। बहुत जल्दी अजामिल गॉट रियलाइजेशन, अजामिल परफेक्टेड हिज लाइफ, एंड देन द विष्णुदूत केम अगेन। जब विष्णुदूत फिर से वापस आए, अभी वो लोग पहले आए थे उनको बचाने के लिए, अभी आए उनको भगवान के धाम लेके जाने के लिए। तो अजामिल मृत्यु के पीठ में पैर देके विष्णु भगवान के धाम से आए हुए जो विमान है, रथ है, उसमें बैठ के विष्णु दूतों के साथ भगवान धाम चले गए। दिस इज द पावर ऑफ होली नेम। इवन ए मोस्ट फॉलन पर्सन can perfect his life. On the other hand, योग पद्धति में हम लोग देखा है कि विश्वामित्र मुनि जैसे महान व्यक्ति, तपस्वी, मेनका के पैर के जो घुंघरू है उसकी आवाज से भ्रमित हो गए और अपने योग पद्धति को जो है छोड़ दिए। तो बड़े बड़े मुनि ऋषि फेल कर जाते हैं, लेकिन इधर ये जो भगवान नाम की इतना शक्ति है कि सबसे गिरे हुए लोगों को भी परफेक्शन दे सकता है। तो इसलिए इन कली युग में तो सभी लोग गिरे हुए हैं। कली युग में हम सभी लोग गिरे हुए हैं, और इसलिए इस कली युग में एक ही मात्र होप है, वो है भगवान की नाम और भगवान की भक्तों की संग। और इसलिए जो हरि नाम ये चैतन्य महाप्रभु ने लाया है, जो स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु लाए और बांट रहे हैं। राम नाम के हीरे मोती भगवान नाम को बांट रहे हैं, और जो सबसे भाग्यवान है उनको ये धन प्राप्त होता है। इस भौतिक जगत में तो हम लोग बहुत प्रकार की धन, पेपर मनी के पीछे भाग रहे हैं, बट दैट कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। हम लोग बहुत भौतिक धन प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े आदमी सुसाइड कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेशन में है, इंटॉक्सिकेशन ले रहे हैं, ड्रग एडिक्शन में जा रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक धन नहीं है। तो इसलिए अगर आपके जीवन में आप सक्सेसफुल होना चाहते, आपके जीवन में हैप्पी होना चाहते तो चैंट एंड बी हैप्पी टू रिसीव दिस स्पिरिचुअल वेल्थ। इसको कहते हैं पारमार्थ। एक होता है अर्थ, दूसरा है परमार्थ। ये शब्द आपको पता होगा। तो परमार्थ मतलब द सुप्रीम वेल्थ। So that is the chanting of the holy name, and person who chant the holy name every day, he सबसे ज्यादा धनी है। अगर आपको अमेरिका जाना है और आपके पास इंडियन करेंसी है, will it have any value? No sir.
तो आपके पास अगर करोड़ रुपया भी रहेगा, अमेरिका में कोई काम नहीं करेगा। यू हैव टू ट्रांसफर। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में जितना भी धन है, मृत्यु के समय जब आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस करेंगे, जम लोग का क्रॉस करेंगे, आपका ये सारा कोई धन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। बोलेगा अरे सर इस धन से आप ऊपर नहीं जा सकते सर। कैसे? तो बोले कैसे जगह इधर फेंको, आपको आध्यात्मिक धन चाहिए। अगर आध्यात्मिक धन है तभी आप शाश्वत धाम में जा सकते। एंड देयरफॉर इंटेलिजेंट पर्सन दे ट्राई टू accumulate more and more spiritual wealth. And in Kali Yuga, to gain the spiritual world, the easiest process is chanting the holy name of God, chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iti Shorosoko Nam. This 16 name, Iti Shorosoko Nam, Koli Kalmashanashanam, can destroy all the kalmash, मतलब कंटामिनेशन ऑफ कली युग के हर कलमश को नाश कर सकता है। ना तो परोतर उपाय, देयर इज नो हायर वे, इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेद में यही दिखाई देता है, सारी वेद में यही कहा गया है, सर्व वेदेषु दृश्यते। तो देयरफॉर दिस ऑथोराइज्ड प्रोसेस, बोनाफाइड प्रोसेस इन ऑल द रिवील्ड स्क्रिप्चर। सो इति षोडशको नाम, दिस वर्स इज स्पोकन बाय लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के पहला व्यक्ति हैं और ही इज वन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ वेदा। वेद पहले भगवान किनको बताए थे? कोई बता सकते हैं? वेद पहले भगवान किनको बताए थे? अर्जुन? नहीं सर, अर्जुन को तो कुछ दिन पहले बताया, 5000 साल पहले। उसके पहले किनको बताए? किसी को बाई मतलब बोल कर बताए थे, लेकिन वो लिखा गया नहीं था, तो फिर बाद में अर्जुन को बताते लिखा हुआ। किनको बताए थे पहले? पहली बार किनको बताए थे? साक्षी, सूरज, किनको बताए थे पहले? सर सूर्य देवता। ओके, दैट इज वन करेक्ट। कौन बोला है आंसर? सूर्यदेव? सर सूर्य देवता। ओके सूरज। ओके, सूर्यदेव को गीता बताए हैं। तो सूर्यदेव को बताए थे गीता, ये बात सही है। तो अर्जुन को बोलने से पहले भगवान कृष्ण सूर्यदेव को ये बताए थे। लेकिन सूर्यदेव के पहले भी ये जो वेद के जो ज्ञान है, ये जो दिव्य ज्ञान है, सबसे पहले ब्रह्मा को बताए थे। तेने ब्रह्मा हृदि आदि कवये, सृष्टि की शुरुआत में भगवान सूर्यदेव को ब्रह्मा जी को बताए थे। तो ब्रह्मा ये श्लोक बोल रहे हैं, तो ये कली संतरण उपनिषद में दिया गया है। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग क्यों जप कर रहे हैं? ऐसे नहीं कि इस्कॉन का दिया हुआ है, ये जो ये महादाम सर जी है उनका वो चाहते हरे कृष्ण करते हैं इसलिए सबको हरे कृष्ण बोल रहे हैं, नहीं सर। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी ब्रह्मा जी जो है ये अथॉरिटी है, ये इस ब्रह्मांड का पहला व्यक्ति है और भगवान के पुत्र है। ब्रह्मा का जन्म हुआ है भगवान के नाभि कमल से, इसलिए ब्रह्मा का एक नाम है कमलासन, कमल की आसन में बैठे रहते हैं। ब्रह्मा जी स्वयंभू, किसी स्त्री पुरुष के मिलन से जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मा जी का डायरेक्ट जन्म हुआ भगवान से। तो इसलिए उनका नाम है स्वयंभू। तो 12 महाजनों में एक जन है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा से ही सारा नॉलेज हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है। डिसैप्लिक सक्सेशन ब्रह्मा जी नारद जी को दिए थे, नारद जी व्यासदेव जी को दिए थे, व्यासदेव जी ने लिखा है। और वही चीज हम लोग डिसैप्लिक सक्सेशन से हमारे पास आ रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा से। व्यासदेव जी, इस प्रकार 4 ऑथोराइज्ड संप्रदाय है। बाहर में बहुत सारे लोग हैं जो अनाप शनाप बकते रहते हैं, जो लोग ऑथोराइज्ड परंपरा में नहीं है। इसलिए कोई अगर शास्त्र के बारे में जानकारी लेना है तो हमें परंपरा से सुनना चाहिए। गीता में 4.2 में भगवान बताते एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोल रहे इति षोडशको नाम, दिस 16 नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे 8, हरे रामा राम राम हरे
हरे कितना हुआ? 16. 16. So therefore, iti shoroshoko nam nam. This 16 name of God, shoroshoko nam nam koli kalmosunasanam, can destroy all the contamination of Kali. See, Kali युग देखिए मेंशन किया हुआ है. तो बाकी जो प्रोसेस है ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है, अभी लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा. तो इसलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र सबसे शक्तिशाली है और इसको मंत्र मेडिटेशन कहा जाता है. तो इसलिए शास्त्र कहते कि हमें ये महामंत्र का जप करना चाहिए और इस महामंत्र का जप करने के द्वारा हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं. इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं. ये जो भौतिक जगत जो रिफ्लेक्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, दिस इज द मंत्र ऑफ लाइफ. This is the mantra of life which can take you back home, back to Godhead. इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, this chanting Hare Krishna is your ticket to going back to Godhead. So if you're chanting Hare Krishna every day, your back home, back to Godhead ticket will be confirmed. If you're not chanting, you'll be chanting something else. Definitely you'll be chanting something, but you'll be chanting something else. Some girlfriend name, some boyfriend name, some film artist name, some sport personalities name, some minister's name, some people of this world, their name. So we'll be speaking something, we'll be chanting something except God. And that type of result, that type of destination, that type of life we'll get. But if we want to get the happy life, eternal life, successful life, life with the divine knowledge, then we should chant this holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, and that will give you the desired success. That's the verdict. That is the conclusion. शास्त्र की सिद्धांत है, conclusion of this all scripture. So I'll end with this beautiful analogy. How the holy name, भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है. भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है क्योंकि the result is depends on your faith. जितना फेथफुली आप जप करेंगे उतना जल्दी उतना आपको इसका रिजल्ट आपको दिखेगा. तो भगवान के नाम किस प्रकार भगवान से अभिन्न है? तो भगवान सर्वशक्तिमान है. भगवान उनके नाम में सारा शक्ति दिया है और इसलिए भगवान के नाम सर्वशक्तिमान है. ये पहला कॉन्सेप्ट है. दूसरा कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि भगवान पूर्ण है, भगवान ओमनीपोटेंट है और इसलिए उनकी अचिंत शक्ति के द्वारा भगवान के नाम भी सर्वशक्तिशाली है. भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है. इस दुनिया में कोई व्यक्ति का नाम और उस व्यक्ति में फर्क है. जैसे किसी का नाम अगर लक्ष्मीपति होता है, बहुत लोगों का नाम लक्ष्मीपति होता है, लेकिन उनका लक्ष्मीपति है. यस, आप लोग क्या सो गए? तो किसी का नाम लक्ष्मीपति है लेकिन वो शायद अरबपति या करोड़पति भी नहीं होगा. ये सनो यस. तो व्यक्ति और नाम में डिफरेंस है. उसी पर किसी का नाम शायद कमल लोचन हो सकता है. कमल लोचन मतलब आंखें कमल के जैसा है, लेकिन शायद उसका आंखें टेढ़े होंगे. तो व्यक्ति और नाम में फर्क है. इस भौतिक जगत में एक व्यक्ति और नाम में फर्क है, लेकिन भगवान आध्यात्मिक जगत क्योंकि इस भौतिक जगत के ऑपोजिट है. तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है. भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है. तो इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि इफ यू चांट कोका कोला, ठीक है, कोका कोला
Coca-Cola, 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 water, 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 water. Can it quench your thirst? No, sir. Uh-huh. Why? बोलिए. But it is created by a human. हाँ? Man-made है इसलिए sir. नहीं नहीं. कौन बता सकता है? पानी का जो प्रॉपर्टीज है, शक्ति है, वो पानी के नाम में नहीं है. You are intelligent. So the name water, name Coca-Cola is different from the product. Correct? So name and the product is different. And therefore it cannot quench your thirst. But we see that the devotees are chanting the holy name many years. Many years, and they are jubilant, they're in ecstasy, they're so happy, and they no longer attracted for the false happiness of this world, intoxication and illicit sex and movie, song, theater, so-called gossip, newspaper, and different varieties of क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं different varieties of program. Sorry, correct. Thank you for speaking this word. Different type of entertainments which is going on in society or comes in mobile phone or YouTube channel or TV show, everything. So people are looking for happiness and they're not getting that happiness, and therefore they're jumping from one activity to another activity, one product to another product, one person to another person. Yes or no? Yes, sir. Monkey mind. So, but the devotees, they chant the same holy name and they experience transcendental pleasure, and therefore they keep chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So they keep chanting the holy name and they experience the transcendental pleasure. So, and therefore, they are no longer attracted the false or material happiness of this world, which people are running after. And after running also, they are not satisfied because it is a mirage. It's a reflection. The happiness is not there. So real happiness in the spiritual world, real happiness in the spiritual practice, real happiness is there in the holy name of the Lord, because the holy name is not different from the Lord. So why they are getting that happiness? They're chanting the same name Hare Krishna year after year, the whole day. Why they are getting the happiness? क्यों वो लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं? इस दुनिया में आप कुछ मूवी सॉन्ग हम लोग देखते हैं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 साल, उसके बाद क्या होता है? खत्म, नया अरे पूरा नया सॉन्ग गाओ, नया सिनेमा लाओ, क्या एक ही मूवी चला के रखे कि सॉन्ग ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता है. क्यों? क्योंकि ओल्ड हो जाता है, वो ओल्ड हो जाता है. लेकिन भगवान के नाम जो है, भगवान के भक्ति जो है, भगवान की कथा कभी भी ओल्ड नहीं होता है. शास्त्र में कहा गया है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च. देखिए भगवान के नाम में बताया गया है अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम. भगवान अनादि है, भगवान के अनंत रूप है, भगवान अद्वैत है, भगवान सब कुछ के आदि है. अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम, वो आदि है, आद्यम पुराण पुरुषम, भगवान पुराण पुरुष है, सबसे ओल्ड है. अरे सबसे ओल्ड है, लेकिन तो फिर तो वो तो ओल्ड ही हो जाएंगे ना. सबसे आदि पुरुष तो ओल्ड होना चाहिए. लेकिन इधर कहा गया है आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च. He never become old. नव यौवनम च. He is ever youth. Is ever youth. So I was really astonished as to see the definition of God, the feature of God. Actually, that type of God only we are searching for.
but never we have heard such kind of definition from our parents or from the people of this world who speak so-called philosophy about spirituality. But we are getting this pure this topmost philosophy from scripture and from disciplic succession. So when I heard about the definition of God, the feature of God, I was very interested. Actually, God should be like this only. So God is complete. He is the oldest person, but he is still youth. And because the Supreme Lord is youth, his name is also like that. His name never gets old. So Advaitam Achyutam Anadi Ananta Rupam Adyam Purana Purusham Nava Jaubanam cha Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhakto Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. So this verse was spoken by Lord Brahma. Again, this is coming from Brahma Samhita. तो भगवान के नाम एवर फ्रेश है, और इसलिए जो जप करते हैं भगवान के नाम, कभी भी उनको क्या बोलते हैं, बोरिंग का अनुभव नहीं होता है, और जप करना चाहते हैं भगवान के नाम। और इसलिए भगवान के नाम क्योंकि भगवान से अभिन्न है, भगवान के नाम क्योंकि भगवान से अभिन्न है, और भगवान आनंदमय भाषा, आनंद की स्रोत है, आनंदमय भाषा भगवान की फीचर है, भगवान आनंदमय भाषा। और इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के डायरेक्ट एसोसिएशन प्राप्त करते हैं, और इसलिए उनको आनंद का अनुभव होता है। उनको आनंद का अनुभव क्यों होता है? जैसे कोका कोला तो उनके जो क्या बोलते हैं तृष्णा है, उनके जो प्यास है नहीं मिटता है, लेकिन भगवान के नाम जब करते हैं तो फिर आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान the Supreme Lord is completely present in his holy name, supremely present in his, completely present in his name. By his supreme potency, he is completely present. Now the person who have faith on this verdict of scripture, शास्त्र के सिद्धांत के ऊपर जिनका पूरा फेथ है, और उस फेथ के साथ भगवान के नाम का जप करते हैं, उस फीलिंग के साथ भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान उनको संपूर्ण रूप से उनका अपना संग प्रदान करते हैं, भगवान उनको उसका अनुभव कराते हैं। और इस प्रकार जब हम लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का जप करते हैं डेली, सिंपल फेथ, यू डू नॉट हैव वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्कॉलर, बहुत सारे श्लोक आपको याद रखना चाहिए, जैसे मैं कुछ बोला, इवन यू डोंट हैव ऑल दिस थिंग्स बट यू हैव फेथ, सिंपल फेथ, भगवान के ऊपर जो सरल विश्वास है, भगवान उनको कृपा प्रदान करते हैं, भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। जिस प्रकार करेंसी है, इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी 100 रुपया का करेंसी है, तो दैट इज मेड ऑफ ए पेपर, करेक्ट? नाउ देयर इज अनदर पेपर, और एक पेपर है कागज, आर द सेम? नो सर। No sir. Sakshi? No sir. Suman? There is some kind of noise. ना सर। तो दोनों कागज से बना हुआ है, नॉर्मल पेपर एंड करेंसी, बोथ आर मेड ऑफ पेपर। Similarly, there is a post box and there is an ordinary box. Both are box, but are the same? ना सर। No. तो उसी प्रकार there is the holy name appear in the form of sound. भगवान के नाम शब्द रूपे नाचे अनुपम, भगवान के नाम शब्द के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान के जो नाम है, ये जो कहते हैं परम अक्षराकृते, परम अक्षराकृते, भगवान परम अक्षर के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो इसलिए भगवान अक्षर के रूप में प्रकट हुए हैं, तो इसलिए कोई सोच सकते कि ये तो ऑर्डिनरी साउंड वाइब्रेशन है, ये कोई शब्द है, भगवान कैसे हैं? तो ये उदाहरण दिया गया है हम लोगों को समझाने के लिए, जैसे 100 रुपया का नोट है, वो कागज से बना हुआ है, लेकिन वो कागज नहीं है,
दैट इज 100 रुपीज। उसी प्रकार पोस्ट बॉक्स है, हाँ, वही कोई साधारण कोई बॉक्स नहीं है। हाँ, तो आर यू एबल टू हियर? Yes, sir. Others? Sir, actually sometimes noise are coming, sir. मेरे पास तो कोई नॉइज नहीं है। क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है आपके उधर, थोड़ा प्रयास करिए, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू एंड एंड आई एम गोइंग टू एक्चुअली आई हैव अनदर क्लास। Akshay can enter into that. They can start chanting. So, actually, we have some bad उनको बोलिए लिंक भेजने के लिए सबको, और they can complete their kirtan and then chant one round, and I'll join in 5 minutes. Okay, everybody is waiting for you. Yeah, they can chant one round, huh? Okay. So, can you hear me, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Suraj? Yes, sir. Yes. तो जिस प्रकार एक 100 रुपया का जो नोट है और वो कागज से बना हुआ है, लेकिन वो कागज नहीं है, कोई ऑर्डिनरी कागज नहीं है, दैट इज 100 रुपीज। हाँ, तो उसी प्रकार भगवान के जो नाम है, हाँ, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये स्वयं भगवान है, क्योंकि भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि हम लोग हमारे भौतिक इंद्र के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान का एक नाम है अधोक सजा। अब भगवान इंद्र के परे है, हमारे भौतिक, जैसे अभी इस रूम में मैं बैठा हुआ हूँ, अभी मैं अगर लाइट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, लाइट ऑफ कर देता हूँ, कैन यू सी मी? No, sir. No, sir. दैट मीन्स विदाउट लाइट यू कैन नॉट सी। और हम लोग बोलते हैं, कोई एक महान व्यक्ति ने कहा है, चोखे ना देखले विश्वास करबे ना। अगर आपके आंख रह भी जाता है, यू कैनॉट See. yes, so your eyes is not independent, your seeing is depends on the help of light. तो तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग इस भौतिक जगत में अगर भौतिक चीज ही, हाँ, बिना लाइट से नहीं देख सकते हैं, हाँ, हमारे आंख की क्षमता नहीं है देखने का, तो भगवान को कैसे देखेंगे? और कोई पूछते कि भगवान को देखे चीज, भगवान को देखा है, हाँ, जब तक नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं करेंगे। तो ये भगवान कोई आपके गुलाम नहीं है कि भगवान को बोलेंगे आ जाओ इधर सामने तभी मैं विश्वास करूंगा। हाँ, भगवान आपके कोई गुलाम नहीं है कि भगवान को चैलेंज करेंगे और भगवान आपके सामने आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। जी सर। तो जब आप भगवान की शरणागत होंगे, भगवान के दिया हुआ प्रोसेस को फॉलो करेंगे, भगवान के प्रतिनिधि भक्तों की शरणागत होंगे, उनके आदेशों का पालन करेंगे, तभी आप भगवान आपको दर्शन देंगे, तभी आप भगवान आपको कृपा करेंगे। भगवान कृपा करने के लिए तैयार है, भगवान कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें विनम्रता के साथ भगवान की दिया हुआ जो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो भगवान किसी का गुलाम नहीं है, भगवान किसी का गुलाम नहीं है। हाँ, कि आप बाध्य है, भगवान तो इंडिपेंडेंट है, भगवान सब कुछ के परे हैं, लेकिन फिर भी भगवान दयालु है, हर युग में आ रहे हैं, शास्त्र प्रदान कर रहे हैं, साधु को भेज रहे हैं,
हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए, हमें उनके धाम लेके जाने के लिए। लेकिन अगर हम लोग अहंकार बस बोलते नहीं, जब दिखाएंगे तभी बोलेंगे, बिना देखे विश्वास, अरे तुम्हारा आपका क्या स्टैंडर्ड है? हाँ, आप लोग जब सेकंड सेशन अटेंड किए थे, सेकंड सेशन में बताया गया, देयर इज 4 डिफेक्ट, imperfect senses, cheating propensity, committing mistake, and to be illusion. Every human being have this 4 defect. So what is the capacity of our strength and we are proud of? And therefore शास्त्र प्रमाण, शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसके द्वारा हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र भगवान से आ रहा है। और जब हम लोग शास्त्र का प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें परफेक्शन मिलेगा, तभी हम लोग परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। भगवान उन नाम में सारे शक्ति प्रदान किया है। भगवान के नाम कोई साधारण शब्द तरंग नहीं है, क्योंकि हम लोग भगवान को इस भौतिक इंद्रिय से नहीं देख सकते हैं, और इसीलिए भगवान इस शब्द के रूप में आए हैं, क्योंकि शब्द को हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भगवान को इस भौतिक आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए भगवान विग्रह के रूप में आए हैं। भगवान उनके अर्चा विग्रह के रूप में आए हैं कि हम लोग भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग चढ़ा सकते हैं, भगवान को ड्रेस पहना सकते हैं, भगवान को दर्शन कर सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, भगवान के विग्रह के रूप में आए हैं। तो इस प्रकार भगवान के विग्रह, भगवान के नाम भगवान से अभिन्न है। उसी प्रकार भगवान के जो दिव्य उपदेश है, भागवत गीता, वेदा, भगवान से अभिन्न है। तो ये सारे चीज इस भौतिक जगत के जो पापी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। भगवान इतने दयालु है, भगवान इस पतित व्यक्ति के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग पतित हैं, और इसलिए हम लोग भगवान को इस भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, और इसलिए भगवान कृपा करके विग्रह के रूप में आए हैं, भगवान कृपा करके नाम के रूप में आए हैं, भगवान कृपा करके शास्त्र के रूप में आए हैं। जब हम लोग उसको फॉलो करते हैं तब हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और दिस इज द मंत्र ऑफ लाइफ। इस मंत्र को प्राप्त करेंगे, इफ यू चैंट, वी कैन एक्सपीरियंस आवर रिलेशनशिप विद गॉड, we can experience the transcendental happiness. As more we practice, gradually we can experience the transcendental happiness. We can realize our existence, our eternal existence beyond this material world. We can see everything in connection with God. We can see that how everything is connected with God, how God is the life and soul. जिस प्रकार शरीर मृत है, लेकिन उस आत्मा जब तक रहते शरीर जीवित रहता है, तो उसी प्रकार इस पूरे सृष्टि के प्राण स्वरूप है भगवान। अगर आप भगवान को भूल जाते हैं, तो आप मृत है, क्योंकि इस पूरे सृष्टि के लाइफ है भगवान। तो जिस प्रकार इस शरीर के लाइफ है आत्मा, उसी प्रकार पूरे सृष्टि के लाइफ है भगवान। पूरे सृष्टि आए हैं भगवान से, और इसलिए भगवान परम सत्य है, परम विज्ञान है। और जब हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, इसका मतलब है हम अज्ञान में हैं, हम लोग अचेतन अवस्था में हैं, हम लोग मृत अवस्था में हैं। और इसलिए therefore the real life is God conscious life. Real life is spiritual life. When we have spiritual knowledge, we have spiritual practice, then we are living. Otherwise, we are dead body. We are not spiritually conscious. We are not aware of God. We are not aware of our relationship with God. We are not aware that we are beyond this body, and we are only thinking about bodily pleasure, bodily happiness, and the facilities for the bodies, and therefore we are dead body. And therefore, the person who have spiritual knowledge, doing spiritual practice, they are actually living. They are actually living. There is a document I have sent to some of you that walking like a dead body. Walking like a dead body. So people are also like walking like a dead body because they are unconscious about the supreme living person, the supreme truth, who is the origin of everything, that is God. So therefore, practice spiritual life along with your college education. Practice spiritual life along with your material duties. Then you are living. Otherwise, we are walking dead.
So therefore, the spiritual association, this sangha is very, very important. The spiritual practice is very, very important. So I am already late. So please chant every day. Rahul is present here. Yes, Guru, I am here. So can you chant one round? So with all the boys. Okay. So now Rahul is a senior of your college. He's chanting 16 round. He's studying in third year of your college. So we have other coordinators also here in this session. So it will take 10 minutes. So we have heard lot of philosophy, but if you chant, like you can hear rasgulla. But if you don't eat, जब तक नहीं खाएंगे तब तक आपको रसगुल्ला क्या है पता नहीं चलेगा. तो इसलिए डेली आप चैंटिंग करिए तो आपका टेस्ट पता चलेगा और आपको भगवान के नाम की महिमा रियलाइज होगा. So this is a realized knowledge. So therefore I request you, so please, because I have to leave, I have to join one more class. So I am thankful to all of you because of hearing for long time, although we are not supposed to discuss till 8:30. So अगर इधर कौन कौन है? निशांत, सुमन and Sakshi. Okay, 3 लोग हैं. So can you chant one round together? Yes, sir. Sakshi? Yes, sir. Okay. So what you have to do, you have to unmute and chant. Okay, sir. Okay, but make sure that so much noise is not coming. So you sit in a place where a lot of sound is not there. So please chant one round. And one more thing I wanted to say, as your exams are coming, so please prepare yourself nicely. So and give your best for your exam. So that is your duty. Your material responsibility. So keep your material life and spiritual life balanced. Like Arjuna was a Kshatriya and he performed his responsibilities and he used his duty for the service of the Lord. So similarly, so if you study nicely, understanding that it is your responsibility for the Lord, then one thing that you can give your best for your studies, and second thing, in future you can use your education, your money for the service of the Lord. So therefore, please prepare yourself nicely and chant every day, minimum 2 rounds. So it will take 20 minutes, and Rahul will tell how to chant. I think some of you already knows, and Rahul will make all of you practice. Okay? हाँ सर. Any question? किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और डाउट्स तो नहीं है आज. अपने सारा बोलते बोलते ही क्लियर होते गया जो आ रहा था डाउट. हाँ, एक्चुअली कुछ डिस्कस करेंगे तो एक्चुअली ऑलरेडी क्लियर हो जाता है क्योंकि इस कंप्लीट नॉलेज जो भी डाउट है कवर कर देता है. ओके, निशांत एंड सुमन. यस सर, मेरे को डाउट था, मैं भूल गया क्या डाउट था. दिस इज द पावर ऑफ दिस प्रोसेस. सारा डाउट खत्म हो जाएगा. जैसे कि सर हम हवा को तो देख नहीं सकते, बट उसका प्रेजेंस को हम अनुभव कर सकते हैं. वैसे ही भगवान को तो हम मतलब भौतिक आंखों से देख नहीं सकते, बट उनका प्रेजेंस को हम अनुभव कर सकते हैं, है ना सर? ओके, वेरी नाइस. यस सर, याद आ गया मेरे को. This process is one step ahead. If you chant the holy name of the Lord, Lord will give you eyes. Premanjana churati bhakti vilochanena santo sadaiva hridayesu vilokayanti. The pure soul, they always see the supreme personality of Godhead because their eyes are smeared with the ointment of love. So now we have Charma Chakshu. We have Charma Chakshu, समझते हैं ना? नो सर. Charma Chakshu skin eyes. Yes sir. So you have Charma Chakshu. Now Charma Chakshu को प्रेम चक्षु से बदल, प्रेम चक्षु में
प्रेम चक्षु में परिणत करना पड़ेगा. यू हैव टू मेक, मतलब यू हैव टू मेक योर blunt, skinny, material eyes and transform into a eyes of love, and that will be possible by Shastra Chakshu. तो चर्म चक्षु, शास्त्र चक्षु, प्रेम चक्षु. नाउ जब हम लोग शास्त्र ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे स्पिरिचुअल लाइफ, तो तब क्या होगा, चर्म चक्षु से शास्त्र चक्षु और शास्त्र चक्षु से फिर प्रेम चक्षु में परिणत होगा. तो शास्त्र चक्षु से प्रेम चक्षु में परिणत होने के लिए शास्त्र के दिया हुआ सिद्धांत भक्तों के संग में, जो स्पिरिचुअल माइंडेड जो पीपल है उनके संग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रेमांजन छुरति भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. दिस इज ब्रह्म संहिता वर्स. लॉर्ड ब्रह्मा इज सेइंग. तो किस प्रकार भगवान को दर्शन किया जा सकता है? प्रेमांजन छुरति भक्ति, प्रेम रूप क्या बोलते हैं, आंखों के द्वारा. अभी हम लोग तो प्रेम नहीं है, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रेम प्राप्त होगा. First we have to purify our everything. Purify our heart and purify our eyes, and that is possible by sound, because this whole material world created by sound. ये जो भौतिक जगत है साउंड से सृष्टि हुआ है. हम लोग बाद में एक दिन डिस्कस करेंगे कैसे पूरा सृष्टि साउंड से आया है. और उसी प्रकार अगर आध्यात्मिक जगत में पहुंचना है, भौतिक जगत की कंटामिनेशन को प्यूरिफाई करना है, तो साउंड से ही प्यूरिफाई होगा वो. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो नाउ प्लीज चैंट वन राउंड.